changing his job हंसते again. बेटा, फर्स्ट लाइन I was leaving. शुरू करोगे, ओके? चलिए शुरू कीजिए। Children are often initiated into the world of books by their elders or friends. Read this write up where the author expresses her heartfelt gratitude to her friend Rinku, who took pains to develop in the author's heart a love for reading. I remember the last time I saw Rinku. We were leaving Kankroli. My father was changing his job again. I was leaving Rinku, and I knew we might never meet again. I was saying, and Rinku 7th, when we first met. Yes. आगे बढ़ो। We had just moved to Kankaroli. Moved to Jamaica into house between trees and Jamshedpur. from Into the house. We had just moved Crowley. Rinku lived a few houses from ours, and unlike my sister and me, was an mute yourself, child. beta. Next, Diksha, unmute yourself. Diksha. Unmute yourself, beta. अनम्यूट करो अपने आप को दीक्षा। आराध्य, unmute yourself. Yes, sir. Okay, read out. Sir, Rinku से. हाँ, yes, Rinku से. Rinku lived a few houses from our, and unlike my sister and me, was an only child. The equalization between Rinku and me was simple. She was the boss and I was accepted. Yes, sir. She was the boss and I was accepted to obey her every command. Rinku probably saw in me the little sister. She never had any protected me. She introduced me to fish, to butter, rice, to lace stockings, and most importantly, to books. Okay, now listen, student. From the first paragraph, I am going to explain you. Listen carefully. Now, I remember the last time I saw Rinku. हमने देखा, आदिति ने ये पैराग्राफ लर्न किया तो क्या देखा हमने? I remember the last time I saw Rinku. रिंकू को देखा हमने, and we were living Kankaroli. वो कहाँ रहते थे वो लोग? कंकरोली में. And my father was changing his job again. और मेरे पापा जो है वो जॉब को क्या कर रहे थे? बार बार उनकी ट्रांसफर हो जा रही थी. Am I clear? तो बार बार जब वो ट्रांसफर हो जा रहे थे तो इससे क्या हो रही थी? रिंकू को भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना पड़ता था. Because just for example, if your father transferred, then what you have to do? आपको क्या करना होगा? आपको भी पापा के साथ मूव करना होगा ना? तो वही चीज कह रहे हैं बेटा यहाँ पर. Yes, sir, we have to move with him. तो वही कह रहा है, I was leaving Rinku and knew we might never meet again. अब हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो रहे हैं तो फिर तो दोबारा मिलेंगे नहीं. Am I right? तो वही चीज कह रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ में देखोगे, when I was 6, Rinku was 7. दोनों की उम्र क्या है? एक की उम्र 6 साल है. कितनी है? 6 years.
और एक की उम्र कितनी है? एक की उम्र है वहां पर कितने? 7 years. 1 years का डिफरेंस है. Am I right? वही चीज कह रहा है. We had just moved to the Kankaroli from Jamshedpur. कंकरोली से अब हम कहाँ की ओर? तो बच्चों अब वहां पे देखेंगे उसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ में था कि द हाउस दैट नेस्टेड बिटवीन. आई होप एम आई ऑडिबल टू यू? रिप्लाई इन योर चैट बॉक्स. Yes, sir. You are audible. Yes, sir, you are audible. ओके ओके थैंक यू बेटा. Yes, sir. You are audible. नेटवर्क इशू है थोड़ा. नेक्स्ट पैराग्राफ. Yes, sir, you are audible. रिंकू 7. हम कितने में थे? रिंकू की उम्र थी 7. Am I right? तो वही चीज कहा जा रहा है वहां पे. When we first met, we had just moved to Kankaroli from Jamshedpur. और हम लोग कहाँ गए थे? कंकरोली से जमशेदपुर की ओर. The house nestled between tree and the field. कहाँ पे थे? ट्री और फील्ड के बीच में सिचुएटेड थे. Right? Rinku lived up house from ours, like my sister and me. Was only child. The equation between Rinku and me was simple. हम दोनों के बीच का इक्वेशन क्या था? सिंपल था. Am I right? तो दोनों के बीच का इक्वेशन सिंपल मतलब दोनों की बातें हम लोगों को क्या होती थी? अच्छे से बैठती थी. मान लो कि अगर कोई वो एग्री होते थे तो मैं भी बातों में एग्री हो जाता था. क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो नाउ उसके बाद हम देखेंगे. Am I right? Next. Rinku show me the little sister. She never command. Rinku Porvelli show me little sister and protected me. हर हमेशा वो मुझे बचाती थी, सेफ रखती थी. She introduced me to fish. उसने क्या किया? मुझे मछली पकड़ना. To butter the rice. मक्खन लगाना चावल में, है ना? ये चीज उसने क्या किया था? मुझे सिखाई थी. समझ में आ रही है बात? फिर नेक्स्ट उसमें देखोगे टू लेस द स्टॉकिंग. स्टॉकिंग सृष्टि बी अवेयर. नाउ तो वही चीज कह रहा है. लेस द स्टॉकिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टू द बुक. और बुक्स, बहुत सारे बुक्स पढ़ना भी मुझे उन्होंने सिखाया था. Am I right? चलिए नेक्स्ट. राधिका. Yes, sir. चलिए रीड आउट कीजिए तो आगे. Yes, sir. Rinku lived. वो हो चुका है. रिंकू लिव बेटा. Until then I had been happy. Until then, I had been happy to listen to my mother's reading of Amar Katha at bedtime. I hadn't All of picked you up underline a that. book Stop बेटा. and read it myself. अमर चित्र कथा. सारे बच्चे इस बुक्स के नेम को अंडरलाइन करोगे. यस. But Rinku changed all that. The first book she made me read was The Yellow Story Book by Inge Blyton, a collection of stories about elves, pixies, and goblins. If refused to read it, it seemed too hard. We discussed it for days and at I relented it with stories. I did and was hooked. Sir, what is the meaning of hooked? पहले पढ़ लो बेटा. देन आई विल एक्सप्लेन यू. एडिक्टेड. किसी भी किताब को मान लो कि रामायण पढ़ते हो या फिर चाउमीन खाते हो ना, तो चाउमीन की आदत पड़ जाना. हुक का मतलब है आदत पड़ जाना किसी चीज से. यस. Rinku sat next to me for hours watching me move my lips. In the next instant, she was teaching me how to read in my mind. In my enter the fairy world of
divided of satisfaction and cheerleading. ओके, नाउ म्यूट योरसेल्फ। अब देखो इसमें क्या कह रही है, until then I had been happy to listen to my mother. उसकी माँ Yes, जो sir. है कौन सी किताब पढ़ती थी? रिप्लाई इन योर चैट बॉक्स। सोते समय कौन सी किताब पढ़ती थी? अमर चित्र कथा। किताब पढ़ती थी वो अमर चित्र कथा। एंड नाउ आई हैड पिक्ड अप द बुक एंड रीड इट माई सेल्फ। और मैंने क्या किया, अपने आप भी उस किताब को पढ़ाई की है। द फर्स्ट बुक शी मेड मी टू रीड वाज, जो पहला किताब मुझे पढ़ने के लिए दिया गया था वो किताब था द येलो स्टोरी बुक बाय एनिट ब्लिटन। वो किताब का नाम क्या था? द येलो स्टोरी रिटन बाय हु? एनिट ब्लिटन। अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी अबाउट एल्व्स, पिग्स, गॉब्लिन। ये कैरेक्टर्स है, जैसे हम लोग के हिंदी में होता है ना बेटा, बौना आदमी होता है, जोकर होते हैं, इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। यही चीज कह रहा है यहाँ पे, it speaks goblin. I refuse to read it and seems too hard. We discussed it Next at last. I was to be relented. It wanted to story. मैं एग्री हुआ था दो कहानी, to reading book without picture, the thought of reading मगर मैं क्या हो गया, 200 pages आदत जैसे book with a आप हैं story. चंपक की आदत हो जाएगी, Using but आपकी आदत हो जाएगी चंपक पढ़ना है, या फिर आपकी आदत है कॉमिक देखने का या कार्टून देखने का, तो उसी को हम बोलते हैं हुक्ड या फिर एडिक्टेड। Am I right? Rinku sat next to me for hours watching me move my lips. ने क्या देखा कि जब मन से पढ़ने की बात आए तो लिप्स की मूवमेंट हमें नहीं करनी चाहिए। Am I right? Next instant she saw teaching me how to read in my mind. बेटा जब मन से पढ़ना है तो आपको होठों को नहीं हिलाना है, लिप्स को नहीं हिलाना है। In my entering the fairy world of Enid Blyton, रिंकू derived satisfaction and thrill. और इससे रिंकू को क्या हुआ? संतुष्टि हुई और उसे बहुत ही क्या हुआ? उमंग भी हुआ। Am I right? चलो नेक्स्ट। रौनक, unmute yourself. Sir, can I read Harshita? पहले रौनक को चांस देने दो, बहुत बाल बना रहा था रौनक। Yes, sir. रौनक, unmute yourself. Yes, sir. आप पढ़िए जरा, कहाँ पढ़ा रहे हैं सर, बताइए तो। Show me the page on the screen. रौनक, स्क्रीन पे दिखाओ तो कहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं। सर आपके यहाँ पढ़ा चुके हैं सर, आपको यहाँ से स्टार्ट पेज पे आ जाइए। यस गुड, चलो अब शुरू करो, वहां से रीड करना। Her next project was to coax me into reading novels without pictures. The thought of reading a 200-page book with a single story was Suresh, pay attention in your book. but like before, Rinku used all her Diksha, unmute yourself. Yes, sir. Okay, read out. चलो रौनक, बंद करो उसको। Her next project was to coax me into Next reading project शुरू करोगे, novels without pictures. शुरू कीजिए। Her next project was to coax me into reading novels without reading 200-page book with a single story was challenging, but like before, Rinku used all her So what is this? पहले रीड कर लो बेटा, उसके बाद persuasive. Rinku used all her persuasive skills to get her way. As the magic world of Mallory Towers and a stick
Claire's boarding school तो stories सेंट of पढ़ते बेटा, girls एस टी having को सेंट पढ़ोगे, secret ठीक है, midnight. सेंट कैलोरीज। Okay, sir. Claire's boarding school stories of girls having secret midnight parades, the famous five and the secret seven. I realized I had stumbled upon a beautiful world that I could retreat to any time I wanted. ओके, अब देखो बेटा इसमें वर्ड्स आया कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है बेटा किसी की सलाह को मानना। मान लो कि कोई फ्रेंड आपको कहते हैं कि ये वाली ग्रामर की बुक बहुत अच्छी है, आपको ये पढ़ना चाहिए, तो यू विल हैव टू लर्न दैट बुक, है ना। तो वही चीज कह रहा है कि हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उस पिक्चर में भी आप देखो कि वो उसको पढ़ने के लिए सिखा रही है। क्या कर रही है? उसे किताब पढ़ने के लिए सिखा रही है। वही कह रहा है, हर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वाज टू कॉक्स इनटू रीडिंग नॉवेल्स। अब छोटी मोटी कहानियां को छोड़ करके बड़े बड़े मोटे किताब पढ़ने के लिए सिखाया गया, विदाउट पिक्चर, जिसमें कि पिक्चर्स, नॉवेल्स में पिक्चर्स नहीं होते। द थॉट ऑफ रीडिंग 200 पेज बुक्स विथ सिंगल स्टोरी वाज चैलेंजिंग। शुरू में हम लोगों के लिए क्या था? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके लिए क्या है? अभी छोटी सी किताब है, मगर यही आपसे कह दे कि मोटे से किताब को पढ़ना है, तो थोड़ी बहुत क्या होगी? टेंशन होगा ना। तो वही मेरे लिए चैलेंजिंग था। रिंकू यूज्ड ऑल हर परसुएसिव स्किल टू गेट हर वे। परसुएसिव का मतलब होता है बेटा ग्रहण करना, पाना, रिसीव करना। उसने अपनी पूरी मेहनत किया कि वो उस नॉवेल को क्या कर सके? पढ़ सके, और अंत में वो सक्सेस भी होती है। वही कह रहे थे कि एज आई एंटर द मैजिक वर्ल्ड, पढ़ाई का, किताब की दुनिया को उसने क्या कहा? मैजिक वर्ल्ड ऑफ मेलोरी टावर्स एंड सेंट कैलर्स बोर्डिंग स्कूल स्टोरी ऑफ गर्ल्स हैविंग सेक्रेट मिडनाइट पार्टी। क्या चीज के बारे में कहानी था? पार्टी के बारे में। उन लोगों ने पार्टी किया था। क्लियर? शाश्वत नोवेल का मतलब होता है बेटा मोटी सी किताब, ग्रंथ, जिसको कहते हैं उपन्यास। हिंदी में हम उसे कहेंगे उपन्यास। द फेमस फाइव, the sacred seven, I realized I had stumbled. Stumble का मतलब बेटा लुढ़कना, लुढ़क करके दूसरे के उसमें जाना। Beautiful world that I could retreat to any time I wanted. जब भी, retreat का मतलब होता है बेटा वापस आ जाना। मान लो कि कहीं आप स्कूल गए और स्कूल से पीछे हट रहे हैं, तो उसी तरह वो क्या है? जादुई दुनिया में चली गई है। किसकी दुनिया में? नोवेल की, सेक्रेट सेवन, सेंट कैलरेस, फेमस फाइव, और वो कभी भी क्या हो सकती है? उससे रिटर्न हो सकती है। Am I right? Okay, सृष्टि, unmute yourself. Yes, सृष्टि, sir. My hunger for books grew as I grew older, and I went quickly from Annie's Blyton books to reading the Nancy Drew series. Two authors like R.K. Narayan, James Herriot, Sherlock Holmes, What I turned Agatha Christie. the two Okay, now the two golden years. चलो अब देखो बेटा, इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि मेरी जो बुक है, माय हंगर फॉर बुक, किताब पढ़ने की लालसा बढ़ते चली गई, है ना। तो माय हंगर फॉर बुक्स ग्रू एज आई ग्रू ओल्डर। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, वैसे वैसे मुझे और किताब पढ़ने का मन कर रहा था। तो आई वेंट क्विकली फ्रॉम एनीडी ब्लिटन बुक्स टू रीडिंग नैन्सी ड्रू सीरीज। एनीडी ब्लिटन की किताब पढ़ लेने के बाद मैंने क्या किया? नैन्सी ड्रू की सीरीज, सीरीज का मतलब बहुत सारे किताब, 1 2 3 4 5 करके बहुत सारे किताब की सीरीज है, उसको मैंने खत्म किया। उसके बाद मैंने कौन सी किताब पढ़ी? R.K. नारायण का, जैसे स्वामी एंड फ्रेंड, याद आ रहा है ना। तो वो चीज को हम लोगों ने क्या किया था? ट्राई की थी उस चीज की। उसके बाद फिर जेम्स हेरेट, शेरलॉक होम्स, अगास्था क्रिस्टी, ये राइटर्स के नेम है बेटा। तो इनके बहुत सारे किताब्स को उन लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद
जब तक मैं 6 साल 7 साल से, अब कितने साल की उम्र हो चुकी हूँ, मेरी उम्र क्या हो गई है 13, मेरी उम्र कितनी हो गई है 13 हो गई है। Am I right? समझ में आ गया कि जब तक मैं 13 की उम्र की हो चुकी थी, Yes, sir. मेरी क्या है, मैंने आर.के. नारायण को पढ़ लिया, जेम्स एलियट को पढ़ लिया, शेरलॉक होम्स को पढ़ लिया, अगास्था क्रिस्टी को पढ़ लिया। राइट है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो ना? सुनाओ। No, sir. चलिए अब No, sir. क्या अनित्य प्रियदर्शी, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. The 2 golden years with Rinku came to an end when we moved from Kankroli that day. As I looked out of the car window and waved to her, my young mind understood that I was leaving behind a very special person, a friend who had opened up a world of treasures for me, a mentor who had taken pride in my growth. We would be forever connected by her priceless gift, a gift that I was eager to pass on. And pass on I did when my son was 6. नाउ लुक देयर बेटा, प्रोनाउंसिएशन को चेक करोगे अदिति बेटा। ट्रेजर्स, ठीक है, प्राइसलेस, ईगर, एगर पढ़ेंगे उसको, ईजर नहीं बेटा, एगर, ठीक है, प्रिसलेस, प्राइसलेस। तो नाउ लुक देयर, क्या कह रहा हूं वहां पे, 2 गोल्डन ईयर्स विद रिंकू कैम टू एन एंड, 2 सुनहरे पल, गोल्डन ईयर जो था हमारा और रिंकू के दोस्ती का, वो अब खत्म होने को आया। When we moved from कंकरोली, अब मेरी ट्रांसफर कंकरोली से हो चुकी है। That day as I look out the car window and waved to her, और मैंने उसे बाय बाय टाटा किया, my young mind understood that I was leaving behind very special person, और वो दोस्त जो है मेरे लिए अब बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो चुकी है। क्यों? तो उसने मुझे किताबें पढ़ने की आदत डलवाई थी। A friend who had opened up a world of treasure for me, a mentor who had taken pride in my growth, और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी वैसे वैसे वो मेरी मेंटर, आई होप ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ मेंटर। जैसे टीचर आपको गाइड करते हैं ना, उसी तरह मेंटर भी वहां पे क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो वही कह रहा, मेंटर हु हैड टेकन प्राइड ऑफ माय ग्रोथ, और मैं उसके अंडर कंट्रोल में बढ़ चढ़ करके बड़ापन मेरा जो हो रहा था, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ। एम आई राइट? सुनाओ। वी वुड बी फॉरएवर कनेक्टेड बाय हर प्राइसलेस गिफ्ट, वो अनमोल गिफ्ट कौन सा था, प्राइसलेस का मतलब अनमोल, उसका कोई मोल नहीं है। प्राइसलेस गिफ्ट, द गिफ्ट वाज आई वाज eager to pass on, and pass on I did when my son turned 6। और उसके बाद ये देखो किसने लिखा है, who is the writer? पूर्णिमा कलुथा, पूर्णिमा कुलिथा ने ये स्टोरी को सिंप्लीफाइड किया, मतलब बच्चों के लिए छोटा बनाया है इसको। Am I right? So Anmola, can you tell me the moral of this story? चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हो, बोलोगी? रिप्लाई इट, एनीवन जिन्होंने पढ़ा है। Sir, I want to. Yes, tell me, what is the moral of the story? Sir, पूर्णिमा बेटा रीड नहीं, पहले मोरल ऑफ द स्टोरी बताओ। चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हो। अनमोला अनम्यूट करो अपने आप को। नो, the moral we should read book. Good. Anidya is replying, we should read or contact with the
फ्रेंड, हमें क्या करनी चाहिए? अच्छे फ्रेंड से दोस्ती करनी चाहिए जो हमें क्या करे? गाइड करे किताब पढ़ने के लिए। Am I right? स्टूडेंट, किसी को डाउट? आई होप सारे बच्चे समझ चुके हैं। The moral of this story is that you should develop the habit of reading a book. इस कहानी का सारांश क्या है? Sir, what is the meaning of pixels? Sir, what is the meaning of pixels? कहाँ, कौन से पैराग्राफ में बेटा? Sir, सब समझ में आ गया। Sir, until then I had been happy. सर हम अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे। कौन सा बोलो? फॉक्स मीनिंग? Sir, pixels. P-I-X-I-E. क्या बेटा? Sir, 49. स्क्रीन, आप पेज दिखाइए स्क्रीन पे। Okay, sir. And point out with your finger. See this word, pixels. ओके ओके, इल्ब्स। ओके, अच्छा, मैंने अभी बताया था। ओके ओके, समझ गया बेटा। अब स्क्रीन से हटा लो राधिका। तो वहां पे देखो, कह रहे हैं ना, इल्ब्स का मतलब जैसे बौना होते हैं, होता है ना, छोटे मोटे कैरेक्टर्स जो भी होंगे, तो उसी तरह से आपके अनदर कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे ड्रामा में आप लोगों ने देखा होगा कि जोकर सब होते हैं ना, जोकर होते हैं कि नहीं? टेल मी। Yes, sir, होते हैं। उसी तरह से आपके Yes, sir. कैरेक्टर्स पिक्स, उसी तरह कैरेक्टर क्या होते हैं? पिक्स। Am I right? जो कि ड्रामा से रिलेटेड रहता है वो। Am I right? समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और किसी को डाउट है? देखे ना, नो सर, नो डाउट। No, sir. No. बिकॉज ये आपका अपने से पढ़ना था बेटा। सर हम अनम्यूट नहीं हो पाए थे। यस, Goblins. समझ में आ रहा है ना? वहां पे ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं बेटा। रॉक बैंड्स में जैसे पिक्स, ये ग्रुप है। गॉब्लिन भी बोल रहे हैं ना, वहां पे जैसे कैरेक्टर्स में आते हैं पिक्स। ये सारे जो होते हैं ना बेटा, अमेरिकन में, जैसे इंडिया में बोना होता है, नाटा आदमी होता है, या जोकर होता है, तो ये फॉरेन कंट्री है। ये फॉरेन कंट्री के कैरेक्टर्स के बारे में बात की जा रही है। जैसे तो अमेरिकन में या फिर ब्रिटेन में, उसमें भी कैरेक्टर्स जो होते थे ना, रॉक बैंड में, उसी में पिक्स का इस्तेमाल होता था। Am I right? तो बैंड बजाने वाले, Yes, डांस sir. करने वाले, तो वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्स या फिर गॉब्लिन्स भी एक कैरेक्टर्स है। अब समझ में आ रही है? Yes, sir. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीट? रिट्रीट का मतलब बेटा पीछे हटना। अब जैसे गॉब्लिन हम उसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलियन देखे हो ना? एलियन का पिक्चर देखा है आपने? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह से गॉब्लिन होते हैं, मतलब कार्टून टाइप के। अब समझ में आया? गॉब्लिन क्या होता है? दानव की तरह क्रिएचर होते Yes, हैं sir. तो उसी को हम लोग गॉब्लिन बोलते हैं। सर रिट्रीट, RETREAT। रिट्रीट, यस पीछे हटना। ओके सर। ओके, ओके सर। सो नाउ टाइम इज ओवर। नाउ टाइम फिनिश हो चुकी है बेटा। यस मे आई Yes, गोइंग sir. टू ओवर द क्लास। यस Yes, सर। sir. हैव अ नाइस डे। बाय सर। नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट, Bye, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir.